Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yasodhanandana Braja Janarandana Yasodhanandana Braja Janarandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yasodhanandana Braja Janarandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Gaura Hariba, 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 Nitya Gaura Hariba. Nitya Gaura Hariba, 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 Nitya Gaura Hariba. Jaya Vishnupad Paramangsta Privraj Kitariyasta Tarasada Sishimari Devange Shri Bhaktivedanta Swami Srila Maharaj Srila Prabhupada ki jai. Shri Radha Govind Bhagavan ki jai. Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. You've got a microphone. Hare Krishna. So I've been asked to speak on Bhagavad Gita. तो मुझे भगवद गीता पे आज चर्चा करने के लिए बोला गया है. This is the land of Krishna and Arjuna. और ये अर्जुन और कृष्ण के बीच में वार्तालाप है. And in this 8th chapter of Bhagavad Gita, Arjuna is asking the question to Krishna. ये 8वां अध्याय है जिसमें शुरू में ही अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं. Kim tad brahma kim adhyatmam kim karma purushottama adibhutam cha kim proktam adidaivam kimuchyate. This is the question of Arjuna to Krishna. ये अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं. O my Lord, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, O Supreme Person, हे पुरुषोत्तम, what is Brahman? ब्रह्मा क्या है? What is the self? आत्मा क्या है? What are fruitive activities? सकाम कर्म क्या है? What is this material manifestation? ये भौतिक जगत क्या है? What are the demigods? तथा देवता क्या है? Please explain this to me. कृपया करके यह सब मुझे बताएं. So Prabhupada gives a very nice commentary here. प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं. Lord Krishna answers different questions from Arjuna. अर्जुन ने पूछे भिन्न भिन्न प्रश्न, उन सभी के उत्तर कृष्ण दे रहे हैं. What is Brahman? ब्रह्म क्या है? The Lord also explains karma, भगवान ने कर्म भी समझाया, devotional service, भक्ति योग भी समझाया, yoga principles, और योग के सिद्धांत, and devotional service in the pure form. और भक्ति योग जब शुद्ध अवस्था में किया जाता है. The Bhagavatam explains that the supreme absolute truth is known as Brahman, Paramatma, and Bhagavat. श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है. And also the living entity, individual soul, is also called Brahman. साथ ही जीव आत्मा या जीव को भी ब्रह्म कहते हैं. Arjuna inquires about the Atma, तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा which, आत्मा के बारे में, which refers to the body and the soul and the mind. जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है. Here Arjuna addresses Krishna as Purushottama, यहाँ पर अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया. which means he is the supreme person. इसका अर्थ है कि वो परम पुरुष हैं. He is not putting these questions just as the friend of Krishna, but because Krishna is also the supreme person. तो ये प्रश्न अर्जुन केवल एक सखा को नहीं पूछ रहे, उस कृष्ण को भी पूछ रहे हैं जो कि सभी पुरुषों में उत्तम हैं. And therefore he is the supreme authority. इसी कारण से वो सबसे उत्तम अधिकारी भी हैं. And he will give the definitive answers. और इस प्रकार उस अधिकार के कारण भगवान कृष्ण बहुत सही उत्तर देंगे. So it's very important for all of us to understand these things.
हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सब कुछ समझना। We have got this life, and what we do with this life will give the future. हम इस जीवन में क्या करें और भविष्य में इस जीवन में क्या करें। Just now, I was going through the exhibition, the expo, with the changing body. अभी मैं आपके मंदिर के जो कृष्णा एक्सपो है उसका एक भ्रमण कर रहा था और उसमें दिखाया गया है कि कैसे शरीर हम बदलते हैं, आत्मा शरीर परिवर्तन करता है। From the baby to the old man. एक छोटे शिशु से बड़ा होता है फिर वृद्ध हो जाता है, Same person is there, लेकिन उसके अंदर व्यक्ति आत्मा वही है, but the body is changing. लेकिन शरीर परिवर्तन हो रहा है। And from old man to death. और जो वृद्ध अवस्था के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। And then what you become in your next life will depend upon your karma and activity. और अगले जन्म में आप क्या बनोगे वो निर्भर करेगा मृत्यु के समय आपका भाव क्या था और आपने कर्म कैसे किए। Just like here in the Gita Mahatmya, there's one story. और गीता महात्म्य में भी एक कथा बताई गई है। There was one Brahmana from South India, एक दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण रहता था, and his name was Bhavashama. उसका नाम भवश्याम था। But he was not very good Brahmana. बहुत अच्छा ब्राह्मण नहीं था वो He was like living like debauchee. वो बहुत ही निम्न स्तर का जीवन व्यतीत कर रहा था। He would like to go with many different women. वो बहुत अलग अलग स्त्रियों से संबंध करता था। He was always thinking money, money, money. हमेशा वो धन के बारे में चिंतन करता रहता था। Devotee, we pray Krishna, 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 but he's praying money, money, money. हमारे भक्त लोग कृष्णा 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 का जप करते हैं, वो लेकिन वो धन 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 करता था। So he was cheating, he was stealing. वो चोरियां भी करता था, ठगता भी था। He liked to also drinking alcohol. और वो मदिरा पान भी करता था। And so much, one time he went to one function, he was drinking so much, it was coming, he fell unconscious. तो ऐसे किसी कार्यक्रम में वो गया, उसने इतनी मदिरा पी ली कि वहां बेहोश होकर गिर गया। And that the alcohol coming from his mouth. उसके मुंह से भी वो मदिरा अब छलक रही है। So they came, emergency situation, had to take him to the doctor. उसको इतनी अवस्था उसकी खराब होगी कि उसको डॉक्टर पर लेके जाना पड़ा। But doctor couldn't revive him. डॉक्टर उसको फिर दोबारा ठीक नहीं कर पा रहा था। And he died. और उसकी मृत्यु हो गई। My mouth is inside. He died, and the next life he came back as tree. और उसकी मृत्यु हो गई, वो अगले जन्म में एक वृक्ष की योनि मिली उसको। Date palm tree. Date palm tree. खजूर का Date. डेट खजूर का वृक्ष बना वो। And he was living a long time like in the body of the date palm tree. और वृक्ष की योनि में बहुत सालों तक उसका जीवन चला। Then when he was there were two other Bhutas came there. और जब वो वृक्ष की योनि में था तो दो भूत उसके वृक्ष में आते थे। They were Brahma Rakshasa Bhuta. ब्रह्मा राक्षस भूत। Yeah. And they were husband and wife. और वो पति और पत्नी का जोड़ा था। So they lived long life as Bhuta, as ghost. They had a long life as the ghost. तो वो इतनी बड़ी आयु थी उनकी जैसे देवी देवता रहते हैं बहुत युगों तक। In their previous life they were also Brahmana. तो वो पिछले जन्म में वो पति पत्नी भी ब्राह्मण थे। But they were very greedy. लेकिन वो बहुत लोभी थे। They were cheating people. वो लोगों को ठगते थे। They were very rude to the people. और बहुत ही वो हठी थे। They would take other people's belonging. और दूसरों का सामान भी वो चुराते थे। And so they had to come back as Bhuta. तो इसलिए उनको भूत की शरीर मिला। Bhuta. And they came and they stayed underneath that tree. That was Baba Shama had become the tree. तो जो भवश्याम ब्राह्मणा जो वृक्ष बन गया था खजूर का, उसी वृक्ष के नीचे वो जोड़ा रहता था। And the wife, she said to the husband, I'm very tired of living like Bhuta. तो वो पत्नी ने कहा कि मैं भूत की योनि में रह रह के थक गई हूँ। How we can become free from the Bhuta life. हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं इस भूत की योनि से। And the husband, he remembered his Brahmana training.
और जो उसका पति था उसने अपने ब्राह्मण का जो काल था पिछले जन्म में वो स्मरण किया. He said, "Oh, you have to know what is Brahman. You have to know what is Atma. You have to know what is Prakriti. All these things you have to know." तो पति ने कहा अपनी पत्नी को कि अगर तुम स्वतंत्र होना चाहती हो इस भूत की योनि से तो तुम्हें सब कुछ हमें समझना पड़ेगा. भगवान कौन है, जीव आत्मा कौन है, You have to become self-realized. तब हमें आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा. Then, only then can you come out of the Bhuta body. केवल तभी ही हम भूत की योनि से बाहर आ पाएंगे. So then she repeated back again. And actually she said, what is the Brahman? What is the self? What is the karma? And what is the prakriti? तो यही प्रश्न उस पत्नी ने भी पूछे कि फिर भगवान कौन है, जीव आत्मा कौन है, प्रकृति कौन है, शरीर क्या है. So when she asked, she actually repeated this one half of this verse from Bhagavad Gita. लेकिन वो जो पत्नी ने प्रश्न किया भूत योनि में पति को, तो यही वाला 8वें अध्याय का प्रथम श्लोक उसने दोहरा दिया. She said, Kim tad brahma, kim adyatmam, kim kama purushottama. She said this first verse. तो जो पहली पंक्ति है इस श्लोक की यही उस पत्नी ने बोल दी. So because she said the same thing as from Bhagavad Gita, all of a sudden there was loud sound. क्योंकि उसने भगवत गीता के एक श्लोक की पंक्ति बोल दी थी उस भूत की योनि में भी, तो इसी समय बहुत आकाश से ध्वनि सुनाई दी. And then the tree fell down. उसी समय वो वृक्ष नीचे गिर गया. And this Baba Shama again came to be Brahmana. तो जो भव श्याम जो वृक्ष की योनि मिल गई थी ब्राह्मण को, वो फिर से मनुष्य की ब्राह्मण की योनि में आ गया. And then when he was watching, he saw that Lord Vishnu had sent some Vishnu dutas with the Vaikuntha Vimana and took those two back to the Vaikuntha, back to the. तभी उस ब्राह्मण ने देखा कि तभी विष्णु भगवान ने विष्णु दूत भेजे वैकुंठ से पुष्प विमान में, और उस विमान में वो जो भूत की योनि में पति और पत्नी रह रहे थे वृक्ष के नीचे, उनको वो विष्णु लोक ले गए. So Baba Shama, Hare Bal, Hare Bal. So Baba Shama was very shocked. तो भव श्याम को बहुत अचरज हुआ. How is this happening? कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है. It must be they were talking philosophy. इसका अर्थ है कि वो अवश्य ही कोई भक्ति के सिद्धांत की बात कर रहे थे. And actually, he remembered his Brahminical training. क्योंकि वो भी ब्राह्मण था, उसको अपने ब्राह्मण काल का स्मरण आने लगा. She spoke some of the verse from Bhagavad Gita. क्योंकि उस भूत योनि में भी उस स्त्री ने कुछ भगवत गीता का ये श्लोक उच्चारण किया. So he remembered and he wrote it on the leaf. तो उस ब्राह्मण ने उसी समय उस श्लोक का स्मरण किया और एक पत्ते पर वो लिपि में लिख लिया श्लोक. So he vowed, I will always chant this. तो उसने प्रण लिया कि आज के बाद हमेशा मैं ये श्लोक का उच्चारण करूंगा. And he went to Varanasi. और वो वाराणसी चला गया. And by the Ganga. गंगा के किनारे पर. And he was sitting by the Ganga, just chanting all the time, chanting, praying to Krishna, chanting this verse. वाराणसी में गंगा जी के किनारे बैठकर ये भव श्याम ब्राह्मणा ये भगवत गीता का श्लोक प्रतिदिन उच्चारण करता रहा. So just at that time, Lord Vishnu was sleeping. उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे. And Lakshmi Devi was massaging his feet. और लक्ष्मी माता उनके चरणों को मालिश कर रही थी. Then Lord Vishnu, he got up. तभी भगवान विष्णु उठ गए. And Lakshmi Devi, she said, why you got up so suddenly? तो लक्ष्मी देवी ने पूछा कि आप एकदम क्यों उठ गए, मैं तो आपको अच्छी तरह मसाज कर रही हूँ. Lord Vishnu, he said, I've been observing the activity of one of my devotee at Varanasi. भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को कहा कि मैं बहुत सुंदर एक दृश्य देख रहा हूँ, मेरा शुद्ध भक्त बहुत सुंदर कार्य कर रहा है वाराणसी में. For many years, he's chanting from Bhagavad Gita. कई वर्ष हो गए उसको भगवत गीता का वो उच्चारण कर रहा है. So I'm very pleased with him. मैं बहुत प्रसन्न हूँ उससे. I'm thinking I will want to reward him. और मैं सोच रहा हूँ मैं उसको कुछ पुरस्कार दूं. For his devotion. उसकी भक्ति के फलस्वरूप में. So Lord Vishnu sent the Vishnu dutas with Vaikuntha Vimana to get him. तो तब भगवान विष्णु ने आदेश दिया अपने विष्णु दूतों को कि वैकुंठ से एक विमान लेके जाओ और मेरे इस भक्त को वाराणसी से लेके आओ. And he went back home, back to Godhead. तभी वो भगवत धाम वापस गया. Not only that, all his ancestor was also given the liberation. They went to the Vaikuntha. ना केवल वो ब्राह्मण गया वैकुंठ में, उसके जितने
पूर्वज थे वो सभी वैकुंठ प्राप्त हुई उनकी। Haribo! Just if one in the family is devotee, whole family is saved. पूरे कुल में, परिवार में, क्योंकि एक भक्त बना भगवत गीता का श्लोक उच्चारण करके पूरा कुल भगवत धाम चला गया। Haribo! So Krishna was explaining about in the previous chapter what is Brahman, what is Atma, what is Prakriti, what is Karma, what is Yoga. तो इससे एक पहले पूर्व 7वें अध्याय में भगवान बता रहे थे आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है। So Arjuna asked the same question back to Krishna. तो वही प्रश्न अर्जुन ने पुनः कृष्ण से 8वें अध्याय के आरंभ में किए। So Arjuna was not unintelligent man. अर्जुन कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। He knew what is Brahman, what is Atma. वो सब जानता था कृष्ण कौन है, ब्रह्म कौन है, आत्मा कौन है। But he wanted to hear from Purushottama. लेकिन वो पुरुषोत्तम के मुख से सुनना चाहता था अर्जुन। Let him explain these things. वो चाहता था कि भगवान ही सबको विस्तार से समझाएं। Then I will understand very clearly. तो मैं और भी स्पष्ट समझूंगा। And all the world for the future will understand it. और भविष्य में आने वाले युगों युगों तक पीढ़ियों पीढ़ियां वो भगवान का ये गुणगान सुनेंगी और समझेंगी। Just like near the Kurukshetra is Jyotisa where Krishna spoke Bhagavad Gita. जैसे आप जानते हैं कुरुक्षेत्र है यहाँ पास ही, वहां पर ज्योतिषर स्थान है जहाँ पर भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को कृष्ण ने दिया। And now we have one big temple. अब बहुत बड़ा इस्कॉन का विशाल मंदिर का वहां बन गया है। Haribo! भव्य मंदिर। Srila Prabhupada, he wanted, when he went, he said, we must have land here. तो प्रभुपाद जी जब कुरुक्षेत्र गए तो उन्होंने वहां रुक के कहा कि यहाँ पर अवश्य ही हमको भूमि लेनी चाहिए एक भव्य मंदिर के लिए। We can make temple for reading Bhagavad Gita, doing kirtan, all these activities. और हम भव्य मंदिर बनाएं ताकि यहाँ से भगवत गीता का उपदेश का और भी प्रचार प्रसार हो और खूब सारा कीर्तन करें। So His Holiness Gopal Krishna Maharaj told me for many years he was trying to get that land but couldn't get. तो परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत वर्षों से प्रयत्न कर रहे थे एक बहुत बड़ी भूमि लेने के लिए कुरुक्षेत्र में। Finally he was able to get. Now we've got beautiful temple there. तो फिर कई वर्षों के प्रयास के बाद महाराज ने इसको उनके लिए बहुत बड़ी भूमि वहां मिली और अब बहुत भव्य मंदिर लगभग बन गया है। So it's very important to hear these things from proper person. तो बहुत महत्वपूर्ण है एक शुद्ध भक्त से ये भगवत गीता का ज्ञान सुनना चाहिए। Sometimes we hear some story from the village. कई बार हम कभी किसी गांव वालों से भी कुछ कथाएं सुनते हैं। Some story of the Leela, this one Leela, that one Leela, so many Leela. ब्रजवासियों से भी हम लीलाएं सुनते हैं कई बार भगवान की। But whether actually is correct. लेकिन वास्तव में वो लीला क्या हुई है वो एक भक्त को मालूम है। But when Krishna speaks, must be correct. और भगवान कृष्ण जब स्वयं अपने बारे में कुछ बताते हैं वो अवश्य सही ही होगा। Because he is the supreme person, he knows everything. क्योंकि वो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, भगवान है, इसलिए उनको सब कुछ ज्ञान है। He is Adi Guru, original Guru. वही तो आदि गुरु हैं सबके। One has to hear from the Guru. हमको गुरु से सुनना चाहिए। Just like we went, yesterday we went to the Sukratal. कल ही महाराज बता रहे हैं कि वो शुक्रताल गए थे। Sukratal ki jai. Dear temple president here, he is a scholar, he's Pandit. He gives many lectures at the Sukratal. तो हमारे टेंपल प्रेसिडेंट वंशीधर प्रभु महाराज बता रहे हैं कि उनको शुक्रताल के बारे में बहुत ज्ञान है क्योंकि वो हर वर्ष वहां कथा करते हैं। Harival. What is that Sukratal famous? What is the why is the famous place? तो शुक्रताल प्रसिद्ध क्यों है स्थान जानते हैं आप? Because Sukadev Goswami, he spoke to Maharaj Parikshit, Srimad Bhagavatam. क्योंकि श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को वहां बैठकर सुनाई थी। For 7 days, Maharaj Parikshit just heard that. 7 दिन तक परीक्षित महाराज ने सुना बैठ के। He didn't do other activity. उन्होंने और कोई कार्य नहीं किया 7 दिन परीक्षित No महाराज। sleeping, eating, just hearing and asking questions. परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात ना तो विश्राम लिया, ना नींद ली, ना अन्न ग्रहण किया, केवल भागवतम श्रवण किया। But very humbly. बहुत विनम्रता के साथ। So this is the formula
for making advancement on the spiritual path. तो ये सार है अगर आध्यात्मिक जीवन में हमने प्रगति करनी है. Srila Prabhupada says, especially in the Kali Yuga, the spiritual life is more difficult. प्रभुपाद ने पहले ही बताया है कि कलयुग में आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन हो जाएगा. One needs a lot of knowledge from books like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. तो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता से इसलिए हमें ज्ञान लेना पड़ेगा. And one needs to hear from the proper teacher. और हमको एक सही सत्य गुरु से सुनना पड़ेगा. Just like if you want to study medicine, जैसे आप कोई अगर डॉक्टरी करना चाहते हो, you think you can just go in the street and learn, ask someone what is the medicine? तो आप चाहते हो अगर आपने डॉक्टर बनना तो आप गली में जाके किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हो? No. You have to go to the proper school. तो आपको प्रॉपर मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा. And there has to be a qualified teacher. और आपको बिल्कुल जो निपुण अध्यापक है, गुरुजन मेडिकल साइंस के, उन्हीं से सुनना पड़ेगा. So it has to be the teacher, has to be good school, has to be good book, has to be good everything. तो अच्छा विद्यालय होना चाहिए, अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए और अच्छे अध्यापक होने चाहिए. But sometimes a good teacher, good school, good book, but still student fail. कई बार होता है बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है, अध्यापक भी अच्छा है, पुस्तकें भी अच्छी हैं, लेकिन जो विद्यार्थी वो फेल हो जाता है. Why? ऐसा क्यों होता है? He is not good student. वो अच्छा विद्यार्थी नहीं है. Everything good. You have to have good teacher, good school, good book, and good student also. Then everything is perfect. तो सब कुछ सफलता पानी है तो आपको अच्छा विद्यालय चाहिए, अच्छी पुस्तकें चाहिए, अच्छे अध्यापक चाहिए, लेकिन अच्छा विद्यार्थी को भी अच्छा होना पड़ेगा. At the end of the Bhagavad Gita, we read where Krishna asked Arjun, "Did you hear everything with attentive mind that I spoke to you?" तो भगवद गीता के अंत में हम पढ़ेंगे कि भगवान कृष्ण पूछते हैं अर्जुन से कि जो मैंने अभी भगवद गीता का ज्ञान दिया, क्या तुमने ध्यान से सुना? Is your ignorance dispelled? क्या तुम्हारा अंधकार अब चला गया है? Have you come to the point of the knowledge? क्या अब आप ज्ञान के बिंदु पर आ गए हो? Prabhupada explains that Krishna was accepting the position of guru. तो प्रभुपाद समझाते हैं कि कृष्ण ने यहाँ पर भगवद गीता में गुरु का स्थान ग्रहण किया. Guru has to be very patient with the disciple. और गुरु को बहुत संयम रखने पड़ता है अपने स्टूडेंट, अपने विद्यार्थी के साथ. Some disciple learning quickly, some disciple learning more slowly. उसी कक्षा में कोई शिष्य बहुत जल्दी चीजों को समझ लेता है और दूसरा विद्यार्थी बहुत समय लगाता है. Some disciple not remembering. एक शिष्य है जिसको याद ही नहीं रहता कुछ क्या पढ़ा था. So Prabhupada said Krishna was ready to re-explain any point of the Bhagavad Gita. तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण बहुत दयालु हैं, वो भगवद गीता में पुनः पुनः दोहराते हैं अपना ज्ञान. Or even whole Bhagavad Gita again he would teach. पूरी us. भगवद गीता वो दोबारा पढ़ने को तैयार हैं भगवान. So of course Arjuna is very intelligent. इसमें कोई संशय नहीं कि अर्जुन बहुत बुद्धिमान है. Nastamoha smriti labdo tatpasaramaya. Yet he said, yes, तो अर्जुन ने by कहा your mercy, my ignorance is dispelled, my illusion is gone, I am prepared to follow your instructions. अर्जुन ने कहा अंत में कि यस, हाँ, आपके ज्ञान से मेरा अंधकार गायब हो गया है और अब मैं पूरा आपके कथा अनुसार चलने को तैयार हूँ. So Arjuna says, by your mercy I have. अर्जुन ने कहा आपकी कृपा से मैं समझ पाया हूँ भगवद गीता को. So the student can't be puffed up. तो विद्यार्थी को कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए. Who is the best guru? अति उत्तम गुरु कौन है? One who has been the best student. वही जो अपने जमाने में सबसे अच्छा विद्यार्थी रहा हो. If you have been the best student, you can be the best teacher. अगर आप बहुत अच्छे शिष्य हो तो आप बहुत अच्छे अध्यापक बन सकते हो. And one has to be humble, respectful. और हमको बहुत विनम्र भी होना चाहिए, आदर पूर्ण भी गुरु को करना चाहिए. Now it is said in the world, Jainmaishwara Shruta Shribi, that we can become puffed up very easily. और शास्त्र बताते हैं कि हम बहुत जल्दी अहंकारी अभिमानी हो सकते हैं. Janma, we can be puffed up by the high family, high birth. कई बार हमें अभिमान हो जाता है कि हमने बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया. My family is very big, big name, big Brahmin, big aristocratic family. Become puffed up. हमें अभिमान हो जाता है कि मेरा परिवार ब्राह्मण है, मेरा परिवार बहुत धनी है. Jainmaishwara, or I have got a lot of money. मेरे परिवार में बहुत धन है. You become very proud. तो हम बहुत गर्वित हो जाते हैं. Shruta Shribi. Shruta means I am very educated, MA, BA, MA, PhD, very educated. हमें अपने भौतिक ज्ञान पर भी, अपनी डिग्री पर भी बहुत अभिमान हो सकता है. Or Shribi, I am very beautiful, I am very handsome.
और अपने शरीर के सौंदर्य पर भी, मैं बहुत सुंदर हूँ दिखने में, उस पे भी अभिमान हो सकता है। I am the most beautiful lady. I am the most handsome man. मैं बहुत ही सुंदर युवक हूँ, मैं बहुत ही खूबसूरत स्त्री हूँ। You become very puffed up. इसलिए हम अहंकारी हो सकते हैं। Any of these things, इनमें से कोई भी वस्तु अगर हमारे मन में आएगी, or someone may have just one of these things, और इन सभी में से किसी को एक भी वस्तु का अभिमान हो गया and अगर, become too proud. They can become too proud. Too proud. तो प्राउड, तो इन किसी भी एक कारण से हमको बहुत ज्यादा अभिमान आ सकता है। Or someone may have some high birth, lot of money, also very handsome. और कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके पास धन भी हो, सुंदर भी हो, और उसका परिवार भी बहुत उन्नत हो। And if someone has high education also can very easily become very proud. तो ऐसे भौतिक विद्वान भी जो हैं डिग्रीज के बलबूते, वो भी बहुत जल्दी अभिमानी हो सकते But हैं। when one is too proud, he can't hear anything. लेकिन जो बहुत अभिमानी होता है वो फिर उन्नति नहीं कर सकता। One has to be humble, respectful. हमको आदर देना चाहिए गुरुजनों का, और विनम्र होना चाहिए। Then that person will learn. तो तभी उसकी विजय निश्चित है, जो विनम्र है। Just like our A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, he was always very humble. जिस प्रकार हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये सदैव बहुत विनम्र रहे। Yeah, he went all over the world, opening many centers, पूरे विश्व भर में इन्होंने भ्रमण किया भक्ति बांटने के लिए, spreading the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार किया, मंदिर बनाए, and he would get so many praises. और उनको बहुत प्रशंसा मिलती थी हर जगह। But he said, it is all by the mercy of my Gurudev, Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur ki jai. तो श्रील प्रभुपाद ने कभी भी अपनी उस प्रशंसा का श्रेय नहीं लिया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं कर पा रहा हूँ। So whenever it was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Vyasa Puja, Prabhupada would say, you take my picture from the Vyasa-san and you put him and I will sit down. तो जब प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की व्यास पूजा उत्सव आता था, तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को कहते थे कि अब व्यास आसन से मेरा चित्र मूर्ति को हटा दो, वहां पर मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज की चित्र को रखो, उनकी पूजा करो, और मैं उनके चरणों में नीचे बैठूंगा। So in front of Guru, doesn't matter you have money, doesn't matter you have learning, you have to sit down. तो गुरु से अगर शिक्षा ग्रहण करनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास बहुत धन है, बुद्धि है, ज्ञान है, जब तक आप उनके चरणों में नहीं गुरु के बैठोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। Then you will get the spiritual blessings. तब आपको आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता है, Then you will make the advancement. तब आप जीवन में उन्नति करते हैं। One time when Prabhupada was going in the train, some 3 young men came to see him. एक बार श्रील प्रभुपाद रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, तो 3 नवयुवक उनसे भेंट करने आए। So I said, Swami, we want the blessings. तो उन्होंने तीनों युवकों ने कहा प्रभुपाद को, स्वामी जी हमको आशीर्वाद चाहिए। And Prabhupada said, what blessings you want? प्रभुपाद ने पूछा आपको कौन सा आशीर्वाद चाहिए? One man said, I want the blessings, my business will do good. तो एक व्यक्ति ने कहा मुझे ये आशीर्वाद चाहिए कि मेरा व्यापार में वृद्धि हो। Other one said, I want the blessings, my children will do good in the school. तो दूसरे व्यक्ति ने कहा मुझे ये आशीर्वाद चाहिए कि मेरे जो बच्चे हैं वो शिक्षा में, स्कूल कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करें। Other one said, I have very bad knee, I want blessings, my knee becomes more better. तीसरे युवक ने कहा मेरे को बहुत बीमारियां रहती हैं, मेरे घुटने ठीक हो जाएं, मुझे ऐसा आशीर्वाद चाहिए। Ashi Baba Baba. Prabhupada said, I am not Ashi Baba Baba, blessings, professional blessings giver like that. प्रभुपाद ने कहा मैं ऐसे आशीर्वाद नहीं दे सकता, मैं व्यावसायिक नहीं हूँ। Said, when you come to Guru, you don't ask these things. तो जब आप गुरु के पास जाते हो तो ऐसी चीजें मत मांगो। If you want the children to do good in the school, you go to the school teacher. तो अगर आप चाहते हो आपके बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करें तो आप स्कूल टीचर के पास जाओ। Want to do good business, get business consultant. और अगर आप व्यापार में उन्नति करना चाहते हो तो कोई अच्छे व्यापारी से भेंट करो। You want knee better, go to doctor. अगर आपने घुटनों को ठीक करना है तो डॉक्टर के पास जाओ। But when you come to Guru, has to ask spiritual question from Guru. अगर आप सच्चे गुरु के पास जाते हो, उनकी शरण में जाकर केवल आप आध्यात्मिक प्रश्न पूछो, And then Guru will bless you with so much spiritual advancement. और तब गुरु जो आशीर्वाद देगा आप इतनी उन्नति करोगे। The end of your life, go back home, back to Krishna. और इस जीवन के अंत पर आप भगवान के धाम जाओगे।
Prabhupada used to tell us, why stay in the material world? Just after this life, you go back to Krishna. तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे अपने शिष्यों को कि इस भौतिक जगत में रह के क्या करोगे, अब ये जीवन आपका भक्ति का हो जाएगा तो आप अब भगवत धाम जाओगे इसके बाद. So one should try to understand how to make the advancement of the spiritual life. तो हम सबको समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे उन्नति करें. Be very serious student of the spiritual life. हमें आध्यात्मिक जीवन में बहुत गंभीर विद्यार्थी बनना चाहिए. And to be the serious student, one has to have the serious guru. तो एक अगर गंभीर शिष्य बनना है तो गंभीर शिक्षक भी चाहिए. Don't be foolish disciple and looking for foolish guru. एक मूर्ख शिष्य मत बनो और मूर्ख गुरुओं की तलाश मत करो. There's one funny story from the Purana. एक बहुत ही मजाकिया कथा आती है पुराणों में. One time there was old guru had a few disciples. एक वृद्ध गुरु थे, उनके कई शिष्य थे. An old guru, he wanted to go pilgrimage all holy places. तो वो जो वृद्ध गुरु थे वो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे. The guru, he was old, he couldn't walk. वो इतने वृद्ध थे कि वो पैदल नहीं चल पा रहे थे. So he said, bring one donkey, I will go on the donkey. तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि एक गधा लेके आओ, उस गधे पे बैठ के मैं तीर्थ यात्रा पे निकल जाऊंगा. And and then all the belonging on the donkey also. और वो उसी गधे पर जो भी उनका यात्रा का सामान था उस बैग को भी उस गधे पर लाद दो. And you can walk by the side. और शिष्य को आदेश दिया तुम गधे के साथ साथ पैदल चलते रहना. So after some time they were going, it was becoming hot. तो कुछ समय बस यात्रा में जाने के बाद देखा बहुत गर्मी हो गई है. And the guru said, where is my hat? It's too hot. तो गुरु ने शिष्य को पूछा बहुत गर्मी हो गई है, अब मेरी टोपी कहाँ पर है. And the disciples said, oh Guruji, your hat fell from the donkey. तो शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुजी आपका जो टोपी है वो तो गधे से गिर गई थी रास्ते में ही कहीं. Then why you didn't pick the hat? तो गुरु ने शिष्य को प्रश्न किया कि जब तुमने देखा मेरी टोपी गिर गई है तो उठाई क्यों नहीं उसको. The Guruji said, but you never told us, Guruji, to pick the hat. शिष्य ने बोला गुरुजी आपने मुझे बताया नहीं कि अगर टोपी गिर जाएगी तो उठाना भी है. You are so foolish disciple, you don't know to pick the hat. तो गुरु ने कहा कितने मूर्ख शिष्य हो तुम मेरे. Go immediately find hat and bring it. जाओ ढूंढ के लाओ. And he said, now you carry the hat. और उन्होंने कहा कि अब उसको ढूंढ के पकड़ के अब तुम उठाओ उस टोपी को मेरी. And from now on, anything that falls from the donkey, you have to catch it. और उन्होंने आदेश दिया अपने शिष्य को कि अब गधे के ऊपर से कोई भी चीज गधे से गिरती है तो उसको उठाओ. So yes, Guruji, yes, Guru, we will do as you say. तो शिष्य ने बोला जो आ गया गुरु महाराज मैं करूंगा. So after some time, the donkey walking, Guru, disciple walking. तो कुछ समय बीत गया, डोंकी के ऊपर गुरु बैठा है, चल रहा है, साथ साथ शिष्य भी चल रहा है. So the donkey wanted to relieve himself. तो डोंकी को क्या बोलना था, क्या मल त्यागना था. मल त्यागना था. So the disciple looking at each other. The Guruji, he said to have to catch anything falling from the donkey. तो शिष्य सोच रहा है गुरु ने कहा था अब कुछ भी गधे से गिरे तो उठा लेना. And other disciple said, but what will we catch it with? तो दूसरा शिष्य आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि वो मल उसका उठा तो ले लेकिन किस चीज में कैच करें उसको. We said, oh, we have the Guruji's hat. We can carry. तो दूसरे शिष्य ने बोला गुरु की टोपी है ना हमारे पास, उसमें कैच करते हैं मल गधे का. So they caught in the hat. तो उन्होंने टोपी में वो मल को कैच करना शुरू किया. And after some time, Guruji, I'm very hot. Bring me my hat. तो थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी ने कहा मुझे गर्मी लग रही है, मेरी टोपी लेके आओ. The disciple looking, oh, will we give? But Guruji is saying, so we must give. अब शिष्य एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि फिर डांट पड़ेगी. अब गुरुजी टोपी मांग रहे हैं तो उनको दे दो. And then he put the hat and all. गुरुजी ने फिर वो टोपी को जब सिर पे पकड़ा लगाया तो पूरा मल उनके चेहरे पर आ गया. So Guru was very angry. अब गुरु को बहुत क्रोध आया. But why Guru is so angry? Such foolish disciple he had. तो क्यों क्रोध आया गुरु को? क्योंकि जिसका इतना मूर्ख शिष्य होगा और वो क्या करेगा. Disciple foolish, he is foolish for having such foolish disciple. तो इतना मूर्ख शिष्य लेना एक मूर्ख गुरु के बश का ही हो सकता है. So Purana story said, don't be like that don't be disciple like that and don't find Guru like that. तो वो पुराण समझाते हैं इस कथा से हमको कि ना तो ऐसे मूर्ख शिष्य बनो और ना ही ऐसा मूर्ख गुरु ढूंढो. So Prabhupada always told us that when you become devotee and disciple, you have to always remember you are representing me. तो प्रभुपाद जी ने कहा अपने शिष्यों को कि जब आप गुरु बनोगे तो याद रखना
कि आप मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हो, So you have to act very nicely. इसलिए आपको बहुत सुव्यवस्थित तरह से Because व्यवहार करना पड़ेगा। if the people criticize you, they can also criticize me. तो अगर वो लोग आपका आलोचना करेंगे तो वो वास्तव में मेरी आलोचना होगी। So we are very fortunate. We've got very good guru. तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे बहुत अच्छे गुरु हैं। Jai Srila Prabhupada ki. जय। And we have got very good Supreme Personality of Godhead and Radha and Krishna. और बहुत सुंदर राधा कृष्णा है हमारे मंदिर में। And we got the mercy incarnation, Lord Chaitanya Mahaprabhu. He is और calling. और भगवान की कृपा का अवतार हमारे पास चैतन्य महाप्रभु भी हैं। Just like I saw in the expo, Lord Chaitanya is just calling you. Come on, come on. अभी कृष्णा एक्सपो देख के आए हैं महाराज जी हमारे मंदिर में, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत सुंदर रोबोटिक है जो बुला रहा है सबको, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ So जाओ। he says, just chant everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Prabhupada told us just chant one Ratha Yatra. Prabhupada, he said to everyone, he said, thank you, ladies and gentlemen, for participating in the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो एक रथ यात्रा पे प्रभुपाद जी ने सभी का धन्यवाद देते हुए बोला कि सभी युवक और युवतियों बहुत बहुत मैं आभारी हूं आपका, क्योंकि आपने चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लिया। It's very simple. All you have to do is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The Prabhupada said, very simple formula, just chanting Hare Krishna, you do your working and chanting Hare Krishna. Very simple. प्रभुपाद जी ने बहुत सरल रास्ता दिखाया, बोला है सरल विधि है भक्ति की, आप अपना कर्म में लगे रहो, बस हरे कृष्णा जप करते रहो। So thank you very much. Hare आपका बहुत बहुत Krishna. धन्यवाद। Jai. Yes. He's got one. तो आपका कोई प्रश्न है तो यस आप पूछ सकते हैं। Can spiritual advancement and material advancement go hand in hand? क्या आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति साथ साथ चल सकती है? ये प्रश्न है। हरे कृष्णा, थोड़ी शांति बनाए रखिए गार्ड साहब। Yeah. So गार्ड साहब, generally the spiritual life means detachment from the material life. तो जनरली साधारणता जो आध्यात्मिक जीवन है उसका अर्थ है कि थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न करना भौतिक जीवन से। But true detachment is meaning that everything is used in Krishna's service. लेकिन वास्तव में वैराग्य वो है कि जो आपके पास है वो श्योर करो कि वो सभी भगवान की सेवा में लगे। So if one uses the material things in Krishna's service, he can give so much. तो अगर आपके पास जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, उपलब्धियां हैं, अगर वो भगवान की सेवा में लगाते हो तो वो सबसे बड़ा वैराग्य है। Prabhupada used to tell us there's one saying, and he said that if Krishna wants, with your two hands, how much you can take from Krishna, he can give you so much. प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर कृष्णा हमको देने पे आ जाए दो हाथों से, तो हमारे दो हाथ बहुत छोटे हैं, वो इतना कुछ दे सकते हैं कि हमारे हाथों में समाएगा नहीं वो। But if Krishna wants to take from you, how can you hold it? और वहीं अगर भगवान कृष्ण हमसे कुछ लेने के लिए आए तो हम रोक नहीं पाएंगे। So हमारे Krishna is like the father. He is observing what you are doing. तो भगवान काल भी हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं क्या हो रहा है। If he sees someone or he's using material things very nicely for the spiritual cause, he gives so much more. तो अगर वो भगवान किसी भक्त को देखते हैं कि अपनी भौतिक उपलब्धियों वस्तुओं को वो भगवान की सेवा में लगा रहा है तो उसको वो और भी अधिक देते हैं फिर। But if someone is abusing, then he can take away very easily. लेकिन अगर भगवान देखते हैं कि कोई अपनी उपलब्धियों का दुरुपयोग कर रहा है तो वो ले भी लेते हैं वापस। So it depends on the individual whether the material things and the spiritual thing can go hand in hand. तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो क्या ये सब कुछ जो भौतिक उसका है वो आध्यात्मिकता में लगा पा रहा है या नहीं। Prabhupada used to say, if Krishna wants, he can give you the whole world. तो भगवान अगर चाहें तो पूरा
विश्व हमको दे सकते हैं. But if थोड़ा Krishna, शांति बना लीजिए प्लीज, बातें कर रहा है कोई. yeah, श्श्श. yeah. Any other question? और किसी का प्रश्न कोई? Yes. So he's asking this gentleman that is there any process? So after this life, I will never take any birth again. Is there any process? Yeah, that's what you said. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the process. यही विधि है. Very simple process. Do your working, chanting Hare Krishna. Do always like that. Don't do other things. Do always like that, and then no more birth in the world. सदैव यही विधि है. आप अपना कर्म करते रहो, लेकिन सदैव भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो. सदैव, कभी कभी नहीं. बस यही विधि है. So Krishna says in Bhagavad Gita, I am the swift deliverer from the ocean of the birth and death. For one who is always thinking and meditating on me and rendering devotional service, I'm swiftly taking them from the material world. भगवान कृष्ण भगवद गीता में वचन देते हैं कि जो भी भक्त सदैव उनका चिंतन करता है, उनका स्मरण करता है, उनकी भक्ति में सेवा में लगा रहता है, भगवान स्वयं उसको इस भव सागर से पार ले जाते हैं. So Krishna gives promise. भगवान वचन दे रहे हैं. Hare Krishna. Any other question? और किसी का कोई प्रश्न? I come here to take darshan of the Lord, but my mind goes everywhere. How can I stay focused? Oh. You have to more chanting. आपको अधिक जप करना पड़ेगा. Lord Chaitanya says two things. Chanting Hare Krishna and sadhu sangha. Sadhu sangha, sadhu sava shastrakai, lava matra sadhu sangha, sava siddhi. Just always associating with the great souls, the great devotees, and chanting will very quickly tame the restless mind. Just have the patience, just do these things and pray to Krishna, then he will help you. चैतन्य महाप्रभु ने दो चीजें बताई हैं महत्वपूर्ण. एक तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो और एक शुद्ध भक्तों का संग करो अधिक से अधिक. उससे जितना भी मन भटकता है वो धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है. All our mind is going from so many because so many lives we've had many thoughts and different activities, so our mind is very restless. क्योंकि इस भौतिक जगत में बहुत कुछ हम देखते सुनते हैं तो मन बहुत भटकता रहता है. But to make success on the spiritual path, one needs to fix the mind in the Krishna consciousness. लेकिन अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो हमको भगवान के चरणों में अपना एकाग्रत करना पड़ेगा मन, साधु संग से और हरे कृष्ण महामंत्र के जप से. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. So we thank you very much, His Holiness Ramai Swami Maharaj ki. So thank you, Maharaj. We request on behalf of Iskcon Noida, please keep coming here in your transit to Vrindavan. Thank you. And next time maybe give us some more time. We can organize more classes. तो आप महाराज से अधिक प्रवचन सुनना चाहेंगे? So they say they would like to hear more and more from you in future, Maharaj. And कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, आप ध्यान से सुन लीजिए. आने वाले रविवार को बहुत ही सुंदर एक इंटरनेशनल ट्रूप आ रहा है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और साउथ अफ्रीका के भक्तों का, लेड बाय हिज होलीनेस भक्ति मार्ग स्वामी महाराज, जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं, गुरु हैं, जीबीसी हैं इस्कॉन के. तो बहुत बड़े अपने ग्रुप 19 भक्तों के साथ आ रहे हैं, इंटरनेशनल ग्रुप जो स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्म करते हैं. दे आर मच बेटर देन आवर हिंदी मूवीज. हिंदी मूवी में भी फ्लॉ होता है, इनका प्ले जिन्होंने देखा वो 19 कंट्री से लोग आ रहे हैं. बताओ, आप कभी नहीं आपको मिलेंगे इतने अलग अलग कंट्री से भक्त. तो शाम को 6 बजे प्ले है उसका, 6 से ऑनवर्ड्स, नीचे ऑडिटोरियम में, कमिंग संडे 17 मार्च 6 PM. और प्ले का नाम है द एज ऑफ कली, कली का युग. ये जो कली युग चल रहा है उस पर प्ले है, एंड वेरी फ्लॉलेस. आई ऑलवेज कॉल भक्ति मार्ग महाराज, ही इज स्टीवन स्पीलबर्ग ऑफ ISKCON, and he loves that, you know. So he's more than Steven Spielberg, you know. He's a big movie maker, and now he's a guru in ISKCON. He's a walking monk. पूरा पैदल चलते हैं पूरे विश्व भर में.
तो आप उनके दर्शन कीजिए, उनका ड्रामा देखिए 6 PM कमिंग संडे। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है कि महाराज शुक्रताल का जिक्र कर रहे थे अभी। शुक्रताल यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पर है, हस्तनापुर के पास। और वहाँ हमारे मंदिर के अध्यक्ष जो वंशीधर प्रभु है पीछे बैठे आपके सामने, हाथ खड़ा कर दीजिए प्रभु, वंशीधर प्रभु। ये हर वर्ष 11 वर्ष से कथा करते हैं वहाँ, 1 सप्ताह की, उसी स्थान पर जहाँ सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को प्रथम बार श्रीमद् भागवतम सुनाई। तो प्रभु जी हर साल जाते हैं 7 दिन का एक टूर लेके, धाम यात्रा लेके। 31 मार्च से 6 अप्रैल तक 7 डेज की भागवतम कथा होगी, फुल कथा जैसी सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। बस एक ही अंतर होगा, वो 7 दिन भूखे प्यासे बैठे रहे थे, लेकिन प्रभु जी आपको 3 बार प्रसाद खिलाएंगे वहां। 3 टाइम प्रसादम, यू डोंट हैव टू स्टे हंग्री देयर। और कीर्तन लेके जाते हैं, गंगा यात्रा में लेके जाते हैं, बोट पे भी। और उसकी बस चलेगी यहाँ 31 मार्च को सुबह 5 बजे बस रवाना होगी। और आप उसके लिए यहाँ मंदिर के भक्तों को किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ ऑफिस भी हमारा भीष्मा ऑफिस, वहाँ से अधिक जानकारी ले सकते हो। और अधिक से अधिक आए, बहुत ही सबको रूम मिलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर आप सबको वहाँ रूम, प्रसाद, कथा, एवरीथिंग मिलेगा। और संडे को आ जाइए, ठीक 6 बजे ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा, 5:30 आके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और अच्छी सी सीट ले लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड थैंक यू महाराज, थैंक यू वसुश्रेष्ठ प्रभु, एंड आई वुड लाइक वसुश्रेष्ठ प्रभु टू स्पीक few words. Just say Hari Bol. I'd like to thank Maharaj for inviting me to come with him on this special trip there. We went to Rishikesh one day. Next day we went to Vrindavan. प्रभु जी महाराज का धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु जी महाराज के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से साथ आए, इनको ऋषिकेश 1 दिन बिताया, फिर शुक्रताल And Sukratal. And now tomorrow I'm back to Mayapur. और आज ये वृंदावन गए हैं और कल मायापुर धाम जा रहे हैं। तो प्रभु, you 4 days 4 holy dhams. And Maharaj is going back to New Govardhan, Australia tomorrow morning. एंड महाराज कल ऑस्ट्रेलिया न्यू गोवर्धन, जो इस्कॉन की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ऑस्ट्रेलिया में, फार्म, माउंटेन्स, हिल्स, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी कॉल्ड न्यू गोवर्धन, तो महाराज जी वहां जा रहे हैं कल। Now I know what it is like to be a sannyasi. तो अब मुझे समझ आया एक सन्यासी होने का अर्थ क्या है। Jai Hari Bol. हरि बोल। हरे कृष्णा। पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 8:15 पे दर्शन खुलेगा। उस दौरान आप सभी से विनती है, आप नाम संकीर्तन में भाग लीजिए। अभी हम कुछ देर तक नाम संकीर्तन करते हैं, अगले 15 मिनट। उसके पश्चात भगवान का दर्शन खुलेगा, सभी प्रणाम करेंगे। उसके पश्चात जो है भगवान का शयन आरती करेंगे। 8:30 बजे तक शयन आरती होगी, फिर भगवान का पट बंद होगा, आप अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्णा। देखिए महाराज कितने सुगमता से बहुत ही सुंदर कथा सुना के गए। मुझे आशा है आप सभी लोगों ने हृदय से ग्रहण किया होगा इस कथा को, और इस कथा से आपको निश्चय लाभ होगा। अगर आपने वास्तव में हृदय से ग्रहण किया इस कथा को, तो बहुत ही सुंदर कथा महाराज ने बहुत ही कोमल शब्दों में समझा के चले गए। हरे कृष्णा।